your hands I commend my spirit. Luke 23:46. It was on February 26, 1936, a baby girl was born in Pedinagul family in Medwa, Kerala, to Mr. and Mrs. Thomas and Mariamma Pedinagul. This child was the eldest of the 8 children born to this couple. Deeply rooted in faith, the noble parents imparted values to their kids, and as a result, 4 of the 5 girls committed their lives to the Lord in religious life. The child was baptized and given the name Elizabeth. She cherished the desire and a dream of consecrating her life as a religious in the missions. After completing her high school in 1955, Elizabeth, leaving her home and state, set out for North India and joined the FSMA congregation in Mau in Madhya Pradesh. In 1958, after doing her interstar arts, joined the novitiate and made a first and perpetual profession in 1960 and 1965 respectively. She took the name Margarita. From 1960, Sister Margarita was sent to various communities in the province. Meanwhile, Sister completed her graduation as well as PG studies in MSW from Mangalore. A year was spent in Goa Martade for the spirituality course. Thus, well equipped, Sister was able to render her services in any field, anywhere. Sister worked in Ajmer, Udaipur, Thandla, Suket, Aligarh, Ramgunj Mandi, Tituri in the initial phase, Sneer Sadan, Bombay, etc. These are some of the communities where she was appointed over the years. She spent a year in Andhra Pradesh for the relief work in the flood-affected areas during the devastating floods in 1978. Her great love for the poor and the exploited having noticed by the superiors, she was sent to Ratanpurwa, West Champaran in Bihar, where she pioneered our FSMA presence. In collaboration with Father Thomas Chakalikal, SJ of Patna province and team, Sister Margarita joined the struggle to obtain the release of thousands of bonded laborers and helped in their rehabilitation. It was a challenging mission. After being for 7 years in Ratanpur community, she was transferred to Thandla. Finally, after retirement from her active mission life, 8 years ago, Sister Margarita came here from Suket. A lover of nature, dedicated to the service and uplift of the poor and the downtrodden, Sister spent her days in quiet contemplation, spending a lot of time in the presence of the Lord in the chapel. Strict with herself, with no great demands, she helped in the house wherever needed, in whichever way possible. 4 years ago, Sister was diagnosed as having cancer, which was then an advanced stage. Then followed surgery, radiation, chemotherapy, and all other needful treatment. Due to infiltration into the bones, which she had 3 fractures, all of which were followed by major surgeries.
The last fracture and operation were in October 2020, after which Sister was very much afraid even to move and never recovered. She was confined to bed. The doctors treating her told us not to shift her to any hospital, but keep her here, giving palliative care, making her days comfortable. Sister was having excruciating pain all over the body. Again, the sacrament of the sick was administered. Father Thomas Pernick, Lourdes, SVD, frequently inquired about her and visited Sister whenever possible, as his presence was always a source of comfort and solace to her. The Capuchin Fathers, Father Xavier and Father P.A. Joseph too, came to visit Sister on behalf of the family from Delhi. Purified in the crucible of suffering and pain for nearly half a decade, the Master called her to her eternal reward on 6 April 2001 at 8:35 a.m. We are grateful to all the members of our FSMA family and hundreds of others, priests, religious and faithful, who prayed for Sister, especially in the last few months, and supported her and us, and those of you who participated in today's services. We are greatly indebted to her family, even though none of them could come to see her due to the present situation. They constantly kept in touch with us about her health and general condition. We thank and pray for the doctors and hospital staff for their ready and willing services rendered all through these years of her illness and hospitalization. We are extremely thankful and grateful to all our support staff who were always available for any service without counting the cost. Indeed, we are deeply grateful to Bishop Dev Prasad Ganawa, all the fathers in the parish and Bishop House, as well as fathers of Maitri Southern, especially those of you who have participated today in the concelebration to pray for Sister Margarita. Thank you, fathers. You are always with us through thick and thin. May the good Lord reward every one of you. We are grateful to Mr. Alphonse, Mr. Daniel and his team, and all our parishioners who are always available for any help. We bid farewell to our dear Sister Margarita, and as you are with the Lord, enjoying the beatific vision, pray for us. We too will lovingly remember you. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। यदि हमें उस प्रभु के पास जाना है जो हमारे लिए मार्ग है, सत्य है और जो हमें जीवन देता है, हमने पुनरुत्थान का पर्व मनाया, मृत्यु से जीवन की ओर। प्रभु मुर्दों में से जी उठे। उसके पहले
हमने प्रभु के दुख भोग में भाग लिया, उनके दुख मरण को याद किया और हमने यही प्रयास किया कि हम भी हमारे दुखों के साथ प्रभु के दुख भोग में शरीक हो, ताकि हम उस पास का पर्व को और अधिक योग्य रीति से मना सके। मैं सिस्टर लिली से बात कर रहा था, बीच बीच में पूछा जा रहा था कि सिस्टर मार्गरेटा कैसे है, क्योंकि होली वीक में हम बहुत बिजी थे, व्यस्त थे। और सिस्टर से मैंने यही कहा, सिस्टर हमारी यही प्रार्थना हो कि होली वीक में कुछ ना हो, वही प्रभु जो जीवन देने वाला है, जो हमें संभालता है, जो हमारी देखरेख करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और सिस्टर ने भी यही कहा कि सिस्टर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी ही प्रार्थना रहे कि सिस्टर उस समय तक टिक रहे, क्योंकि हमको मालूम था कि उनकी हालत नाजुक है, कभी भी कुछ हो सकता था। लेकिन ईश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम हमारे उस कार्यक्रम को, जो पर्व हम मनाए, शांतिपूर्वक निपटा सके। और आज जब हम यहाँ पे उनकी इस अंतिम यात्रा में शरीक होने जा रहे हैं, हम विचार कर सकते हैं कि जो दुख भोग हमने मनाया, सिस्टर ने भी उसी दुख भोग में अपने दुखों को शामिल किया और पास का पर्व के समय भी अपने आप को प्रभु को अर्पित किया। और आज जब वे हमारे बीच नहीं है, उनकी बातें हमें याद दिलाती हैं, उनके कार्य हमें याद दिलाते हैं कि उसने एक सेविका के रूप में अपना जीवन जिया है और अपनी दौड़ पूरी की है। जब मैं छोटा था, मैंने सिस्टर को देखा कि सिस्टर थानला में उनकी एक झलक, एक झोला हमेशा साथ में लेके चलती थी, एक समाज सेविका के रूप में कार्य करती थी। आज जब हम उनको याद करते हैं तो वही झलक हमारे सामने है और दूसरों की मदद के लिए हमेशा सामने आती थी। आज हम इस पवित्र संविधान में भाग लेते हैं, उनकी अंतिम यात्रा के समय हम उनके गुणों को याद करते हुए उनके गुणों को हमारे जीवन में ढालने का प्रयास करें। और आज जब हम यहाँ पे हैं, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे और अपने स्वर्ग धाम में उन्हें दूतों और संतों की संगति प्रदान करे। हे प्रभु, सिस्टर मार्गरीटा के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दे, ताकि वह उस लोक में प्रवेश करे जहाँ मृत्यु नहीं बल्कि परमानंद व्यवस्था है। यही हम सबों की विशेष संविधान में प्रार्थना है कि सिस्टर मार्गरेटा के लिए ईश्वर अपना द्वार खोल दे और उन्हें अनंत सुख और अनंत शांति प्रदान करे। आइए इन्हीं भावनाओं को अपने हृदय में रखते हुए इस बड़े में भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ईश्वर से और एक दूसरे से माफ़ी मांगें, ताकि हम इस बलिदान को चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैं सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू पापियों की करुणा और संतों के परमानंद हैं। हम सिस्टर मार्गरेटा की दफन विधि में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इन्हें अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर, ताकि ये मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर पुनरुत्थान के दिन तेरे सम्मुख उपस्थित हो सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्याएं 35 से 39 तक। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है। वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई। किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं, जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि न तो मरण या जीवन, न स्वर्गदूत या नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। प्रभु की वाणी। मुझे
प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वे मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, जो संसार में आने वाले थे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आदरणीय विश्व स्वामी जी, विजी फादर जॉर्ज, सभी फादर्स, FSMA फैमिली की सभी धर्म बहनें, धर्म भाइयों और धर्म बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को संवेदनाएं प्रकट करता हूँ, शोक संदेश देता हूँ। शमीन जयपुरी का एक शेर है, वो कहता है कि मंदिर तो बहुत दूर है, मस्जिद तो बहुत दूर है, गिरजाघर तो बहुत दूर है, आओ किसी नन्हे बच्चे को हंसाया जाए, आओ किसी नन्हे बच्चे को हंसाया जाए। और यही एक बात है जो धार्मिकता को झलकाती है सिस्टर मार्गरेट के जीवन में। सिस्टर मार्गरेट पेरेंगुलर, जो एक ऐसी साध्वी थी जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त को पूर्ण रूप से स्वीकार किया। 8 वर्षों से मैं उन्हें जानता हूँ। आज सुबह जब सिस्टर ने मुझे SMS किया कि सिस्टर की आंखें अंतिम सांसें चल रही है, 8:09 पर, और हम यहाँ पहुँचे, तब तक सिस्टर की सांसें थम चुकी थी। सुबह उनके कज़न भाई फादर थॉमस से बात हुई। उन्होंने कहा कि मेरे 2-3 भाई और हैं जो सिस्टर की इस अंतिम यात्रा में शरीक होंगे, वे मेरे परिवार का प्रतिनिधित्व करेंगे। सिस्टर की 2-3 चीज़ें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मेरे अपने अनुभव से मैंने सीखा है कि एक ऐसी महिला, ऐसी धार्मिक स्त्री जो आस्था पर अपने जीवन की यात्रा बनाए रखी हुई थी। विनम्रता उसके हृदय में कूट कूट कर भरी हुई थी। जब भी वो व्हील चेयर में हमारे साथ बैठकर बातें करती थी तो ऐसा ही लगता था कि एक जीवंत जागता आस्था का एक रूप हमारे सामने है। और मैंने यही महसूस किया है कि बहुत सारे वैचारिक मतभेद हुआ करते थे हमारे बातचीत में, लेकिन अंत में वो आस्था एक प्रतीक, एक विनम्रता का भाव, कुछ ऐसे संदेश हमको दे जाता था जो हमारे जीवन में अमिट छाप दे देता है। उनके जीवन यात्रा में भी हमने देखा कि किस तरह उन्होंने अनेक स्थानों पर अपनी सेवाएं दी हैं। वेस्ट चंपारण में, जहां उन्होंने बंधुआ मजदूरों के लिए कार्य किया, उनके साथ में जैसे फादर थॉमस SJ और स्वामी अग्निवेश, इन सब के साथ वो जूझ रही थी समाज में न्याय लाने के लिए। उन बनियों से लोगों को छुटकारा दिलाकर उनके जीवन में एक राहत वो लाना चाहती थी। उन्होंने आंध्र प्रदेश में उस फ्लड के दौरान, सैलाब के समय, बहुत सारे लोगों के पुनर्वास में अपनी हिस्सेदारी की, अपनी सहभागिता की। और यह बात, यह जीवन, यह आस्था जो प्रभु में पूर्ण रूप से विश्वास रखती थी, जैसा प्रभु आज कह रहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, पुनरुत्थान मैं हूँ। और आज
जब हमने सिस्टर को देखा तो कोई शिकन नहीं थी, एक शांत भाव, एक निर्मलता का भाव उनके चेहरे पर था। तो ये सब ईश्वर का एक वरदान है। 1936 में जन्मी और आज तक की जीवन यात्रा प्रभु के इस विश्वास की यात्रा में मजबूत बनी रही कि किस तरह उन्होंने इस कैंसर की बीमारी से जूझा। अंतिम समय तक उनके गालों में देखा नहीं जाता, इतनी पीड़ाएं सही है, और ये पीड़ा वो सह जाती। कभी उनके मुख से कुछ अनर्गल बातें नहीं निकली। संबलता, विश्वास, त्याग और प्रार्थना उसके जीवन का एक लक्ष्य था, और हर समय प्रार्थना किया करती थी। जब समय मिलता प्रभु से बातें किया करती थी। तो आज जब हम सिस्टर मार्गरेट की इस अंतिम यात्रा में हम शामिल हुए हैं, तो हम उस ईश्वर के वरदान के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, जिनके अनुग्रह में, जिनके विश्वास में वो जीती रही, वो भी प्रभु के साथ कहती रही कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप ही मार्ग, सत्य और जीवन हैं। इसीलिए ईश्वर का प्रेम से हम कभी वंचित नहीं हो सकते, क्योंकि हम उस प्रभु पर विश्वास रखते हैं, उस पर आस्था रखते हैं। हमारा विश्वास उस पर मजबूत है, और यही मजबूत विश्वास पर सिस्टर मार्गरेट चलती रही अंतिम सांस तक। तो आइए हम सिस्टर को प्रभु को समर्पित करें। इस त्याग, करुणा और विनम्रता की ये मूर्त प्रभु के शीर्ष चरणों में, प्रभु की उपस्थिति में, स्वर्ग में पुनरुत्थित प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए प्रार्थना करती रहेगी। इसी विश्वास के साथ कि हमने भी उस प्रभु के लिए अपने जीवन का समर्पण किया है, कि जिस तरह प्रभु के विश्वास में सिस्टर मार्गरेट चलती रही, हम भी उसी मजबूती के साथ किसी तरह का भी दुख आए, किसी तरह की भी तकलीफ आए, हम उस मजबूत बने रहें, उस प्रभु में विश्वास करते रहें, और हम उस प्रभु के हाँ में हाँ करें कि हाँ प्रभु, आप ही मेरे जीवन के दाता हैं, आप ही मेरे पुनरुत्थान हैं, आप ही मेरा सब कुछ है। आइए हम पिता ईश्वर के सामने अपने यातनाएं, अपनी प्रार्थनाएं इसी विश्वास के साथ में रखें कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है, और उचित समय में हमारी प्रार्थनाओं और उचित फल भी हमें देंगे। Heavenly Father, today we pray for our Mother Church, Holy Father Francis, all the bishops, clergy, religious, and all the faithful, that all may be committed to our calling and be messengers of the good news of Jesus our Lord. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Lord God, we have been buried with your Son in baptism to rise with him in glory. Today we pray for our dear Sister Margareta, that she may be admitted to your heavenly kingdom with Christ, her divine Master, whom she endeavored to follow in her life. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for our Bishop Dev Prasad Ganava and all the priests who are here participating in the holy sacrifice and in the funeral services. May God grant his blessings upon you all always. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for the family members of Sister Margareta who are unable to be present here today. We remember and pray for them and all those who have gone to their eternal reward. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We ask God's special blessings on our supportive staff who took utmost care of Sister Margareta from the very beginning of her illness, rendering their services to her without counting the cost. May the good Lord bless them and their families for the sacrifices and generosity. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer.
We remember with gratitude and pray for our Mother General, Sister Roshan, superiors, and all our sisters who are present and those who are away, supporting us with their valuable prayers. Let us pray to the Lord. We implore God's blessings and graces upon all those who are present here. Thank you for your love, concern, and prayers. May you experience His unconditional love at all times. Let us pray to the Lord. आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु ने हम सबको आमंत्रित किया और कहा है कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह हमारा भरोसा है, यह हमारा विश्वास है, और इसी विश्वास और भरोसे के बल पर सिस्टर मार्गरेटा ने अपना जीवन बिताया। उन्हीं के साथ हम भी ये प्रार्थना करें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारी यह भेंट स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी सेविका सिस्टर मार्गरेटा आपके निकट रहो। इनके दफन के अवसर पर हम तुझे यह शांति बलि अर्पित कर रहे हैं। यदि तेरी सेविका पर किसी पाप का कलंक या कोई मानवीय अपराध रह गया हो तो कृपा पूर्वक उसे क्षमा कर और मिटा दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हालांकि हम अपने कुकर्मों के कारण नष्ट होते और पापों के कारण मृत्यु के शिकार बन जाते हैं, फिर भी तेरी करुणा और कृपा से क्रिस्त की महान विजय द्वारा हमारा उद्धार होता है और उन्हीं के साथ हमें अनंत जीवन का आमंत्रण मिलता है। इसीलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। Praise
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, फिर धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। You destroyed our death, rising you restored our life, O Christ. Jesus, Lord Jesus, you will come again in glory. इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष देव प्रसाद और सभी याचकों के साथ विश्वभर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका सिस्टर मार्गरेटा की सुधीले को जिनको तूने अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें बरते कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त कर। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और यीशु की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं,
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न गिरने दे, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग गीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। I try to
जैसा कि हमने सिस्टर मार्गरेटा के बारे में सुना, एक शांत प्रिय व्यक्तित्व वाले इंसान, और वही चेहरा, वही व्यक्तित्व आज हमारे बीच नहीं है, हमसे विदा हो चला है। और हम आज जब उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उपस्थित हैं, हमारी ईश्वर से ही प्रार्थना है कि हमेशा हम उनके गुणों को देखते हुए हमारे जीवन में भी ऐसे गुणों को अपनाते हुए ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान बनना चाहे। आज हम उन्हें अंतिम विदाई देना चाहते हैं। मैं हमारे उदयपुर पैरिश के ओर से सिस्टर प्रोविंशियल सिस्टर ईश्प्रिया, सभी एफएसएमए फैमिली की सिस्टर्स को संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ उनकी इस कमी से उनके परिवार में जो क्षति हुई है, हम परिवार के प्रति भी अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं। आज वो उनकी अंतिम यात्रा में शरीक होते हैं। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि जब हम देवारी जाते हैं, कृपया जो कोविड-19 प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए जाए, सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क पहने। अभी अंतिम प्रार्थना के बाद हम अंतिम संस्कार की जो क्रिया है रीति ही उसमें भाग लेंगे। हम मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के आगमन की बाट जोहते हैं। वे हमारे नश्वर शरीर को रूपांतरित कर उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। हम प्रार्थना करेंगे, सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी सेविका सिस्टर मार्गरेटा को, जो आज संसार से विदा ले चुकी हैं, इस बलिदान द्वारा पवित्र कर दे, ताकि ये पाप से मुक्त होकर पुनरुत्थान का परमानंद प्राप्त करें। यह हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। मृत व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपनी बहन सिस्टर मार्गरेटा की लाश लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है, जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है, ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और अपनी इस बहन सिस्टर मार्गरेटा को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर लें। भले गडेरिए की संगति में पधारें और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। देर न हो, अब देर न हो, प्रभु और के दूतों सत्तों स्वागत कर इस आत्मा को अर्पित आप करे प्रभु को। दूध उठाकर इब्राहिम को गोद में इसकी सज्जित कर दे। प्रेम भरे निज कर कमलों से प्रभु और इसका अर्पण दे प्रभु इसको शांति अपार, चमके इस पर परम प्रकाश। स्वागतम करे दूत संत सब, पहुँचे अब यह स्वर्ग निवास। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपनी बहन सिस्टर मार्गरेटा की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सबों के साथ जो क्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगी
और क्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीती रहेंगी। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु दया पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन, स्वर्ग का द्वार हमारी बहन सिस्टर के लिए खोल दे। हम सबों से ये बहन विदा हो गई हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि क्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन न हो। इस भांति हम तुझसे और अपनी इस बहन से सदा संयुक्त रहेंगे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। Shepherd me, O Lord, beyond my wants, beyond my fears, from death into life. Shepherd me, O Lord, beyond my wants, beyond my fears, from death into life. God is my shepherd,
प्रभु यीशु ख्रिस्त, 3 दिनों तक कब्रों में रहकर तूने अपने भक्तों की कब्र पवित्र की। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हमारा शरीर पृथ्वी की गर्भ में रखा जाता है, हम तेरे समान ही जी उठेंगे। हमारी बहन सिस्टर मार्गरेट का शरीर इस कब्र में उस घड़ी तक विश्राम पूर्वक पड़ा रहे जब जो पुनरुत्थान और जीवन है हमारी इस बहन को पुनर्जीवित और आलोकित न कर दे। हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में ये तेरे मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित रहे, जहाँ तू युगानुग जीता और राज्य करता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारी बहन सिस्टर मार्गरेटा को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम इनका शरीर इस मिट्टी में रख रहे हैं जिससे बनाया गया है। मृतकों में से सर्वप्रथम क्रिस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि हम क्रिस्त हमारे नश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम लोग हमारी बहन सिस्टर मार्गरेटा के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वो इनको अपनी परम शांति के निवास में ले जाए, इनकी देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने पुत्र यीशु को मृतकों में से जिलाया। हम पूरे भरोसे के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों को मुक्ति प्रदान कर। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारी बहन सिस्टर मार्गरेटा को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी। अब अपने संतों की संगति में इनका स्वागत कर। इन्होंने क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था। अब इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाए। हम अपने मृत भाई बहनों, संबंधियों और उपकारों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उन्हें पुण्य कर्मों का इनाम दे। जितने लोग पुनरुत्थान की आशा में शांति की नींद सो रहे हैं, वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें। जो अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, उन्हें तू कृपा करके सहायता और दिलासा दे। हम सबको जो तेरी उपासना करने यहाँ एकत्र हुए हैं, तो अपने प्रताप में राज्य में बुला ले। आइए हम क्या शांति की प्रार्थना करें और कहें, हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध माफ कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न जाने दे, परंतु बुराई से बचा। माँ मरियम की मदद से द्वारा प्रार्थना करें। माँ मरियम की आरक्षा करें। प्रणाम मरिया, तेरे साथ है, तेरे स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। ऐसे मरिया, प्रार्थना कर हम पाप करें अब और हमारे मरने के समय में। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। मृत विश्वास की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। मृत विश्वास की आत्माएं, मृत विश्वास की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। छोड़ दो, धीरे धीरे
हे करुणा सागर प्रभु, तो दिन दुखियों का आश्रय है और उन्हें सांत्वना देता है। तू अपने दुखी जनों को दिलासा दे। तू ही जीवन दाता और मृत्यु विजेता है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति। प्रभु तेरी सूली को नतमस्तक हो आराधे। शरीर सबका उत्थान है, शरीर में ही जीवन है। आकाश धरती सब तेरी, मृतक जीवन पाने दे। जिंदे तुझ में रहे, आश्रय सबका होने दे। वृद्ध लोगों के पापों को मिटा के उनको जीवन दे। ज्ञान स्नान के पानी से सब जन तेरी संतान है। वृद्ध लोग तेरी काया को एवं पावन लहू को स्वीकार लिया पृथ्वी में, स्वीकारो अब आकाश में। बोए बीज जो मिट्टी में, उड़ते वर्षा बूंदों से। मृदुमधुर की आवाज मृतक सारे जी उठे। पिता सुनो मित्रात्मा, मृतकों को नवजीवन दे। शक्ति दूर करो, जीवन ज्योति दान करो। न्यायाधीश है यीशु, दे दो मुक्ति पापों से। न्याय विधि से बचा दे तेरे नश्वर भक्तों को। हे प्रभु, तू अपनी कृपा से हमारे पापों को मिटा दे और हमें आशीष दे। तेरा अनुग्रह में संभाले। तू ही जीवन दाता तथा मृत्यु विजेता है। तू ही जीवन का आधार तथा आत्मा का आश्रय केंद्र है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। स्वीकार तेरा सारे महिमा के साथ जीवन पाए। वरदान तेरा गुरुवर प्यारा, तेरे सामने मृत लोग सारे महिमा के साथ जीवन पाए। जीवन के शाम करता भी हो आसमान पर जब तू मेरे संतों के साथ महिमा गावे। वरदान तेरा गुरुवर प्यारा, तेरे सामने मृत लोग सारे महिमा के साथ जीवन पाए। आधी रातों दुल्हा न्यारा मिलने आवे, सबका प्यारा कन्याओं सब स्वागत तेरा। वरदान देना गुरुवर प्यारा, तेरे सामने मृत लोग सारे महिमा के साथ जीवन पाए। आइए हम मृत सिस्टर मार्गरेट की आत्मा शांति के लिए ये स्तोत्र भजन दोहराते हैं। हे प्रभु, मैंने घर घर से तुझे पुकारा है, हे स्वामी मेरी पुकार सुन ले। मेरी शत्रुओं पर तत्परतापूर्वक ध्यान दे। यदि तू अपराधों पर ध्यान देता रहता तो कौन तेरे सामने टिक सकता। तेरे पास पापों के लिए क्षमा है, मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ। मेरी आशा उसके वचन पर है, मेरी आत्मा प्रभु की प्रतीक्षा करती है। चाहते हैं, उनसे भी अधिक मैं प्रभु को चाहता हूँ। इज़राइल प्रभु पर आशा लगाए रहे, क्योंकि प्रभु दया सागर है। उसके पास और मुक्ति है, वो इस्राएल को उसके अपराधों से उद्धार करेगा। हे प्रभु, तूने अपनी सजीव जीवनदायी वाणी से मृत लाजरुस को जिलाया। वही वाणी हमारी इस वन सिस्टर मार्गरेट को न्याय विधि के दिन जिलाए और तेरी दाहिनी और धर्मियों के साथ खड़े होने की कृपा दे। हे करुणा सागर, तू ही जीवन का स्वामी है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। आमीन।
मसीह सब के प्रभु तेरे दूसरे महिमा पूर्ण आगमन के समय जब मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, सारे मृत लोग कब्रों में से जी उठेंगे और तू धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा। उस महिमापूर्ण क्षण में तेरी इस भक्त सिस्टर मार्गरेटा पर दया दृष्टि डाल और इसे स्वीकार कर, जिससे इसे भी उसी मोक्ष राज्य का उत्तराधिकारी बना जो धर्मियों के लिए जगत के आरंभ से तैयार कर रखा है। आज के इस दिव्य कर्म में भाग लिए हम सभी पर, सारे विश्व पर, कलीसिया और उसकी संतानों पर तेरी कृपा तथा अनुग्रह की निरंतर वर्षा हो, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। आमीन। आइए तो पुनः हम सिस्टर मार्गरेटा को याद करते हुए उनके कार्यों के लिए, उनके सभी वरदानों के लिए ईश्वर धन्यवाद देते हुए उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें और कहे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का भार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाएं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे के बाद में थी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मृत विश्वासों की आत्माएं, ईश्वर की दया से मृत विश्वासों की आत्माएं, ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। मृत विश्वासों की आत्माएं, ईश्वर की दया से शांति में निवास करें प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय जयकार श्री